Rajasthan government on Wednesday introduced Rajasthan Coaching Center Control and Regulation 2025 bill in its assembly with an aim to control the growth of unchecked coaching centers in the states and also to ensure mental health and well-being of students to curb the rising cases of suicides in the states. If it is passed, Rajasthan will become the first state in India to have such a legislation in place. The bill has some very unique provisions. It mandates the coaching centers to get registered if they have more than 50 students. It also proposes hefty fines of up to 5 lakh rupees in case of violation. Hello and welcome to The Print. This is Pariya Iftikhar, and today we have with us Mr. Keshav Agarwal from the Coaching Federation of India and Mr. Shekhar Dutt, who is a co-founder of Sleepy Classes. Thank you so much for joining us, and thanks a lot. And welcome to The Print, sir. I'll ask my first question to Keshav, sir. Sir, according to you, what are the major takeaways from this bill? Now, see, as far as the bill is concerned, there are positives, negatives. And as far as your suicide is concerned, this bill is not going to do anything. Let me be clear, and I'll give you many examples and logics and facts why this bill is not going or has nothing to do with suicide factor. It's a mere 1 or 2%. Now, the positive which is there, first, the coaching industry, which started say way back in 90s, it started in Kota and it grew slowly. Then in Delhi, Fiji developed. So in a span of 30 years, it grew unregulated. So there was no regulation so far. So this is one good step that some regulation move has come and states are coming into it. So one positive is that you have an act to act on them. So the positives are the registration things. So they come in a legal framework or ambit. Second is the provision of refund being there, which is another positive move from student point of view that you are not left in a lurch or something in limbo and you can't get out. Third is the misleading advertisements to lure students on false pretext. Fourth positive, what we can say out here is the career counseling part, which has been introduced. Fifth, the qualification part of the teachers. At least you have some qualification criteria being there. And then other things like canteens, off, and the things. But the bill has been made with quota in view. Now that is the bigger problem out here. Now you cannot take 7, 8 institutes and make the bill for entire coaching industry. There are coaching beyond IIT, beyond JE, and many other factors. So this bill has a controversial thing: 50 students. Now tell me, a simple tutor teaching 12 students in a batch and has 4 to 5 batches. So he also comes under this ambit, and the 2 lakh fine is big amount for him. Now this bill is then not implementable. Then you talk of website. Will those persons who teach 100 students in total, can they have website? Can they have canteen? Can they have counselors? They cannot have. Then the registration has a clause that you must have fire safety and other things. Now, at this, all the coaching small institutes will get wiped up. They will not even get registration. The people who are self-employed will be in big trouble. So this bill is made very hypothetically. Sunday ko classes nahi hongi. You are talking about quota. You are talking about hours. Kitne ghante? Arey, in large, if I tell you, even you will not be able to name the 10th institute in India if I start asking you about IIT JEE. They are looking at 7, 8, Kota, Hyderabad and making the policy. You have to understand it. It should be implementable. It should be inclusive. When we talk about students, we say it should be inclusive. So here you have to see larger picture, not just make about one quota where these facilities exist. And one thing which this doesn't talk of is dummy culture. Now, dummy schools are running under the nose of government. Now, to blame coaching centers for suicides and all is wrong. So here, suicides, why it will not be taken care of? Now you tell me, except JE and NET, where at undergraduate level you have seen suicides? CLAT में कभी suicide देखा है? CUET larger चंक लेता है, वहां सुइसाइड नहीं होते, होटल मैनेजमेंट में सुइसाइड नहीं होते, आर्किटेक्चर में सुइसाइड नहीं होते. तो व्हाई डोंट यू पिन डाउन द प्रॉब्लम हियर? द मेजर प्रॉब्लम इज लैक ऑफ good institution, demand and supply. 24 lakhs taking NIT.
and you have 50,000 medical seats government, you should be creating seats. And see, today you have 15 lakh seats, you will not get a single suicide. JEE 13 lakh appearing, कितने आईआईटी में सीट है? 17,000 सीट है. Then the expectation of parents which is way beyond, वो चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने. स्कूल्स में हम 8 में कॉमर्स की बात ही नहीं करते, 11th में करते हैं. तो बच्चे ने साइंस पढ़ा होता है, उसे लगता है साइंस ही जिंदगी है आगे, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा उसे पता ही नहीं होता. टुडे लॉ में इतना अच्छा करियर है, आर्किटेक्चर है, होटल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सीए है. अब बताओ तो सही, लेकिन क्लियर उस बेचारे को पता ही नहीं है कौन दोषी है. और कोचिंग किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ स्कूल्स, क्योंकि वहां वो जरूरतें पूरी नहीं हुई. दे कैन नॉट गेट ओलंपियाड सिलेक्टेड फ्रॉम स्कूल स्टडी, दे कैन नॉट क्लियर जेई. Who is making school redundant? आपने आज बोर्ड के मार्क्स हटा दिए, क्या हमने हटाए हैं? They have removed the board marks and made their school redundant. CUET में खाली वो पोर्शन आ रहा है जो कि 12th में पढ़ा, MCQ and no board mark. Who is creating pressure? You are targeting coaching, but think deep down, is coaching having any role in deciding syllabus and this elimination exams where students sit and they get eliminated and the pressure, you know, creates. And in my opinion, why you are taking JEE advanced when you have JEE main? 2 लाख बच्चे आपने चुन लिए, उन्हीं 2 लाख को फिर बिठाते हैं, हार्डली रैंक्स इधर उधर होती होंगी थोड़ी बहुत, तो 6 घंटे का पेपर एक ही दिन में बड़ी गर्मी में आप ले रहे हैं और आप कहते हैं वो प्रेशर नहीं है, और वो भी कोचिंग के ऊपर. अरे कोचिंग के पास तो ऑब्वियसली डिमांड है, दे आर सप्लाइंग इट. एंड देन wherever there is an opportunity to earn, why not they will go? Why don't you close that gaming zones जिससे आज इतना डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है. So here you have to sit and then work it out. And one suggestion is, why don't states create a coaching land, give them land, हॉस्टल्स हो, लाइब्रेरी हो, एंड रेगुलेट देम. यू कैन रेगुलेट देयर फीस. देन यहाँ पर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कुछ नहीं दे रहे, जीएसटी दे रहे हैं, 58,000 करोड़ इंडस्ट्री है, कितना पैसा आ रहा है, कोई लैंड नहीं होती. वी आर फोर्स्ड टू रन इन स्मॉल प्लेसेस and then you blame us. So first give, regulate, and then obviously, and things like FitG or जो refund नहीं करते, misleading है, penalize them heavily. They should not be allowed to run. But for few, don't paint entire industry, make a workable solution, take stakeholders, and ये parent की मर्जी से बच्चे आते हैं. This is by choice, not by compulsion. You cannot stop a parent कि वो बच्चा जेई करना चाहता है या क्लैट करना चाहता है, हम उसे कह दें. और आपने 75% क्राइटेरिया जेई में 12th के बाद लगाया कि 12th में नहीं आए तो आपको जेई में नहीं बैठने देंगे, तो आप 10th में भी क्राइटेरिया लगाइए. साइंस कौन देता है? स्कूल देता है, कोचिंग तो नहीं देता. देन ओनली अ चाइल्ड बिकम्स एलिजिबल. सो यू आर टॉकिंग ऑफ दिस एप्टीट्यूड टेस्ट, देन यू कंडक्ट इट. सीबीएसई और अदर बोर्ड डू इट. कोचिंग के पास तो वो पढ़ने आता है, वो पढ़ाता है. सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड अ बिगर पिक्चर. माय व्यूज आर दिस एज ऑफ नाउ. I will come to Shekhar sir now. Sir, what are your first reaction to the provisions proposed in this bill? मैम, जैसे जैसे स्टैंडर्ड एकदम प्रोसेस होता दुनिया में, जैसे जैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट के जो 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 सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो वो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करेगी, तो गवर्नमेंट का रोल रेगुलेटरी होता जाएगा. रेगुलेटरी ये एक स्टेप है. फॉर एग्जांपल, कभी इंटरनेट नहीं था तो इंटरनेट आया, एंड इंटरनेट पे फिर लेट्स से कुछ इंटरनेट जो जो क्राइम्स आए, फिर इंटरनेट क्राइम को रोकने के लिए लॉ आना पड़ेगा. तो मैम ये प्रोसेस है, तो मूविंग इक्विलिब्रियम है, तो मूविंग इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा. तो लेकिन अगेन, जैसे सर बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज बातें कर रहे हैं, बिल्कुल प्रिसाइज. जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारे देश में बिजली की बहुत प्रॉब्लम थी, तो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर्स का बिजनेस आ गया. लेट्स से अगर मुझे गर्मी लग रही है और मुझे पंखा चलाना है, तो मैं इन्वर्टर पे बैन लगा दूं, नहीं नहीं आप इन्वर्टर नहीं चलाओगे. तो ऑटोमेटिकली द गवर्नमेंट इज अनएबल टू डिलीवर, तो वहां प्राइवेट प्लेयर्स आके उसको फुलफिल करते हैं, बिकॉज देयर इज अ डिमांड. एंड मैम ऐसा भी तो है कि अगर इन्वर्टर की कंपनी अगर बेकार इन्वर्टर बना रही है, तो पीपल विल स्टॉप बाइंग दैट इन्वर्टर. मार्केट फोर्सेस तो काम करती हैं. तो इसीलिए कोचिंग सेंटर्स अगर अच्छा करते हैं तो ही ऑटोमेटिकली पीपल थ्रॉन्ग टू इट. a lot of जैसे कोचिंग सेंटर्स दे डिलीवर रियली गुड रिजल्ट्स, तो बच्चे उसको प्रमोट करते हैं, तो वो उसका अलग एक वो मैकेनिज्म बन जाता है. तो मार्केट फोर्सेस जो गवर्नमेंट फोर्सेस के बहुत बियॉन्ड होती हैं, और ऑटोमेटिकली दे वीड आउट बैड प्लेयर्स. तो इस
इसको थोड़ा गवर्नमेंट नजरअंदाज करती है, एंड गवर्नमेंट रेगुलेटरी रोल में भी फिर बहुत ही जो स्टाइफलिंग रोल में आ जाती है, फिर स्टाइफल करना शुरू कर देती है कि लेट्स जस्ट मे बी स्टाइफल स्टाइफल एंड मे बी मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट। क्योंकि अभी मैम जैसे ना बहुत सर ने एग्जैक्ट प्रिसाइज बात की, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ यूपीएससी के लिए, तो एक एक जैसे एक सिंपल सी चीज होती है मैम, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एंड इंडिया में जैसे पर्टिकुलरली, जैसे हम जैसा भी कहें देश हमारा ग्रो कर रहा है, लाइक विल बी सून बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ना बहुत ही लॉप साइडेड है। अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल आर वेरी पुअर, और मैम इतने गरीब हैं कि आप इमेजिन करो कि माई ओनली एस्केप इज लेट्स से आईआईटी जेई, माई ओनली एस्केप इज लेट्स से बिकमिंग एन आईएएस पीसीएस ऑफिसर। तो उस पे मैम वो डू और डाई सिचुएशन के जैसे नजर आता है, और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं हो रही है, लॉप साइडेड है कि जो अमीर है लेट्स से, अगर मेरे पिताजी बिलियनियर हैं तो मुझे मल्टीपल दिशाओं में वो लगा देंगे और मेरे और बिलियनियर बनते रहेंगे। लेकिन अगर मैं इफ आई एम बेयरली मेकिंग एंड्स मीट, अभी मैम जैसे शायद प्रिंट ने एक स्टोरी कवर भी की थी रिसेंटली कि 100 करोड़ इंडियंस दे कैन नॉट स्पेंड, उनके पास इनफ पैसा ही नहीं है टू स्पेंड ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड शेल्टर, उसके सिवा पैसा ही नहीं है 100 करोड़ भारतीयों के पास। तो मैम एजुकेशन एस्केप बनेगा तो दे वुड वांट देयर किड्स टू परफॉर्म बेटर, टू डू गुड, कि और प्रेशर आएगा संडे को पढ़ाई में पढ़ने बैठाएंगे बच्चों को, वो दे वुड वांट देयर किड्स की भाई आप करो एफर्ट यार, निकलो यहाँ से, है ना, इस जो हमने जो जिंदगी बिताई है आप मत बिताना। तो इसीलिए ना वो एफर्ट जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर भी नहीं है, और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन होती जा रही है, वहां पर अनचेक्ड वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन एट द सेम टाइम वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल मोबिलिटी, में पढ़ाई लिखाई करके कोई एग्जाम क्रैक करके आगे निकल जाऊं, तो वो वहां पर बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं नहीं। जैसे मैम अगर हमारे देश में नीरज चोपड़ा था, नीरज चोपड़ा आपको दिखता है कि ना ही थ्रोज जेवलिन रियली वेल, और लेकिन उसको उसको लग रहा है कि ना मैं अभी मेरी हाइट ऊंची जाती है, मुझे एक प्रॉपर प्रोजेक्टाइल चाहिए जहां पे वो दूर भी जाए। तो अभी वो कोच को इन्वॉल्व करता है, जर्मनी से आते हैं उवे होन आते हैं, एंड उवे होन रियली ट्रेन्स हिम वेल, ही बिकम्स अ रियली गुड कोच, और नीरज चोपड़ा गोल्ड और सिल्वर निकालना शुरू करता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो अब उसमें तो हम कोचिंग को मैम कुछ बुरा नहीं बोलते कि कोचिंग बुरा है, और जब हम भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम व्हेन इट इज विदाउट कोच, तो हम बोलते हैं कोच कहाँ है, कोच कहाँ है, कोचिंग नहीं हो रही, कोचिंग नहीं हो रही, इंडियन टीम परफॉर्म नहीं कर रही, इंग्लैंड में हार के आगे एक्सेट्रा, तब हमें बहुत शोर मचता है। लेकिन मोमेंट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, मोमेंट व्हेन इट कम्स टू मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्लाइटली मे बी अ चांस ऑफ मेकिंग इट थ्रू, कि लो कॉस्ट कोचिंग अवेलेबल कराई जाए, मैम गवर्नमेंट के पास कौन सी सुविधा नहीं है। मैं एक बहुत मैम सिंपल सवाल है कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता, सरकारी कॉलेज के लिए सब मरे जा रहे हैं मैम, और व्हाई इज इट सो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस पर इतना क्रेज क्यों है, और एंट्रेंस टेस्ट लगाना पड़ता है, उस एंट्रेंस टेस्ट के बाद इतने सारे कोचिंग सेंटर्स आने पड़ते हैं, और कोटा इंटरनेशनल एक एपी सेंटर बन जाता है। ऐसा ऐसा रीजन है ना मैम, उसका उस रीजन पे काम नहीं करते, एक्सेप्ट जो उसको उसको केटर कर रहा है। और लेट्स से मैम उसमें फिर ना जब केटर करेगा तो उसमें अच्छाइयां बुराइयां दोनों आएंगी, रेगुलेशन चाहिए होगी, लेकिन स्टाइफलिंग जैसे सर का बहुत सही पॉइंट है कि 50 बंदों से ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी मैम ट्यूशन सेंटर्स जो जो कि पर्टिकुलरली कोचिंग, बड़े कोचिंग में, स्कूल में तो चलो समझ आ ही नहीं रहा मुझे कुछ, है ना, और वहां पर इंसेंटिव्स ही अलाइन नहीं है टीचर्स के समहाउ, और लेकिन उसके बाद मुझे कोचिंग में समझने की कोशिश करता हूँ, कोचिंग में क्लास इतनी बड़ी है, 500 बच्चे बैठे हैं, वहां समझ नहीं आ रहा, तो मैं छोटे किसी सर के पास जाता हूँ ट्यूशन पढ़ने या कहीं और, तो वहां पर आप कह रहे हैं कि आपको कैंटीन बनाना एक्सेट्रा, तो ये स्टाइफलिंग वाली तरफ ज्यादा लगता है मुझे, और मे बी गवर्नमेंट जस्ट वांट्स टू मेक श्योर दैट हाँ हाँ हम भी एग्जिस्ट करते हैं। और सर एग्जैक्ट मुझे लग रहा था कि इससे बेटर पॉइंट नहीं सुना सर मैंने, बिल्कुल प्रिसाइज पॉइंट है आपका कि बाकी उस not everyone has been taken into consideration while like, right? एग्जैक्टली। और मैम ये तो मैम ये हमारे देश में ना गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है बहुत टाइम से, कि गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ मैं भी हूँ मेरी भी सुनो, बाकी सडनली बिकॉज मे बी देर आर आई एम सॉरी टू से, मैं खुद पढ़ाता हूँ आईएएस वाले, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईएएस हैं, राजस्थान में भी पोस्टेड है इनफैक्ट। तो लेकिन मैम somehow I have no idea how this happens. Very very bright minds, they stop acting very mediocre. Moment they enter into government services and they start एक्टिंग लाइक सेक्रेटरीज एंड ऑल, वो बहुत ही मीडियोकर तरह से बिहेव करते हैं, इंसेंटिव्स अलाइन नहीं है मे बी टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, और देश को कैसे और ग्रो कराएं। दुनिया भर में मैम कोचिंग सेंटर्स हैं, डेफिनेटली वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, कोचिंग सेंटर स्ट्रेस क्रिएट करेंगे बिकॉज दे वुड वांट मार्केट फोर्सेस अलाइन रहें और वो अच्छे रिजल्ट्स निकालें, बच्चों को पुश करें, अच्छा कंटेंट दें और टेस्ट दे के बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आ रहे, और उसके बाद उसको बोलें भाई तो पढ़ाई और कर। तो
लेकिन उसको स्टाइफल करना, जैसे चाइना में उन्होंने रोक लगा दी कि 8 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं होगी, 8 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं करनी, एंड उन्होंने बैन लगाया, वो स्ट्रिक्टली जो इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं। तो मे बी सच थिंग्स कुड बी प्लेस्ड। जैसे स्ट्रेस में भी एक गुड स्ट्रेस होता होगा, एक बैड स्ट्रेस होता होगा। जो गुड स्ट्रेस आपको मोटिवेट करता है टू गो फॉरवर्ड, बैड स्ट्रेस इट ड्राइव्स यू क्रेजी। तो वो सर का पॉइंट में वही मैं बात कर रहा था कि वो बाकी जगह पे सुसाइड नहीं होते मैम, एक ही जगह पे क्यों होते हैं? तो बिकॉज सीरियस बॉटलनेक्स हैं वहां पर, है ही नहीं। जो आईआईटी जेई नहीं हुआ तो एंड ऑफ स्टोरी वाली फीलिंग आ जाती है लाइफ में कि मेरा कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए इनइक्वालिटी पे काम करना, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा नॉर्मलाइज करना, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। एंड दिस पर्टिकुलर बिल अगेन लाइक सीम्स लाइक अगेन अ वेरी नी जक रिएक्शन। यूपी गवर्नमेंट ने भी किया था मैम, अभी राजस्थान सरकार भी इज फॉलोइंग द सूट। Keshav sir, you mentioned that probably this bill will do very less in terms of curbing the cases of student suicide. ये आपने क्यों कहा? इसमें मतलब what is lacking there exactly? You have to go to the root cause of suicide. Coaching is not the cause of suicide. Coaching is an alternative for the student to get into that institution. Now, when you come to coaching, coaching is not expected to make you play, do all the things. They don't have that much time. Then they have to give results. Nobody is going to come to a coaching. आज आप जाना चाहते हो तो आप क्या बोलते हो? बेस्ट कोचिंग कौन सा है, कौन बेस्ट है? तो जब हम उसकी बात करते हैं तो एवरी कोचिंग उस रेस में रहता है, एंड द ओनली थिंग इज द स्टूडेंट्स एंड दोज हु कैन परफॉर्म. So what happens here is coaching is not a regulatory thing. उसके पास तो एक डिमांड आई और उसने उसकी सप्लाई कर दी. It is for government now to start thinking. Now, why you take only in CUET, for example, class 12th का syllabus? Why रोज लेस 11 years बेकार हो गए? तो अब जब डीजी अपार आईडी ये सब कर रहे हैं तो उसके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स पे आइए एंड गिव वेटेज टू दैट. गिव ए स्मॉल इंटरैक्शन कि उस बच्चे ने एक्चुअल में नंबर लाए. रूबी राय जैसा केस ना हो कि बिहार टॉप कर गई और उसे आता कुछ नहीं है. लास्ट ईयर नेट में क्या हुआ ये सबको पता है, कैसे बच्चे नंबर लेके आए थे. तो आप अपना सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं करते कि एक फिल्ट्रेशन लेवल हो कि अगर किसी ने एक लेवल को क्रॉस कर लिया एयरपोर्ट में फॉर एग्जांपल, वो दूसरे में पकड़ा जाए. यहाँ तो बस एंट्रेंस क्लियर किया, आ जाओ, हम कोई इंटरव्यू नहीं रखेंगे. एंड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग एंटायर थिंग ऑन कोचिंग. इवन फॉर दैट मीडिया गोज पेंटिंग राउंड विदाउट पुटिंग हार्ड क्वेश्चंस टू देम. आप एंट्रेंस बंद कर दो, मैं कहता हूं. अब डमी स्कूल कल्चर क्यों चल रहा है आप समझिए, क्योंकि 12th के बोर्ड्स के मार्क्स नहीं है. मैं क्यों जाके अपना टाइम करूंगा वेस्ट? मैं वहां फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं कि मेरे नंबर आते नहीं है, मुझे समझ आ नहीं रहा, मुझे जो पढ़ना है वो यहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा. व्हाट इज द अल्टरनेटिव? ओलंपियाड्स. डू यू थिंक क्लास में पढ़ के बच्चा ओलंपियाड्स कर लेगा? और आज आईआईटी मद्रास ने क्या किया रिसेंट एक हफ्ता पहले, दोज हु आर टेकिंग ओलंपियाड्स गेट ए डायरेक्ट एंट्री. तो बच्चा क्या करेगा? क्यों नहीं पढ़ेगा उसके लिए? आप स्कूल की व्यवस्था ठीक करिए. जैसे सर ने कहा, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मरे जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से दूर भागे जा रहे हैं. क्या प्राइवेट स्कूल्स एक्सप्लॉइट नहीं करते? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं करते? हमारे यहाँ डिमांड, सप्लाई, पॉपुलेशन, अदर फैक्टर्स देखने की जरूरत है. एक लिमिटेड इनकम. कल मैं एनडीटीवी पे था तो वो कह रहे थे कि एक सर्वे है एनएसएसओ का, वो बताता है कि भारत में जो पेरेंट है गरीब अमीर 40% कोचिंग या एजुकेशन पे खर्च कर रहा है. अब एक पेरेंट 2 लाख 3 लाख फीस जो देगा, क्यों देगा? पागल तो नहीं है. उसे पता है यहां से मिलना है और उसको किसी ने फोर्स भी नहीं किया. अब हम कहते हैं बच्चे को ले आए. बच्चे को लाने वाला पेरेंट है, एक अडल्ट है. बच्चा अपने आप फीस नहीं देता. तो इन सब चीजों को हम ना समझ के एक इरैशनल तरीके से मूव करेंगे. तो आप बताइए सुइसाइड क्यों? अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, और इस साल सुइसाइड हुआ इसका भी एग्जांपल देता हूं. जनवरी के महीने में 12th के प्री बोर्ड होते हैं और उसके ठीक 1 महीने 20 दिन बाद बोर्ड्स होते हैं. तो किसने आपको कहा 23 जनवरी से 30 जनवरी जेई मेन की एग्जाम करिए, जब उसका प्री बोर्ड है, उसका प्रैक्टिकल है, और बोर्ड शुरू होने से पहले आप रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे. और बच्चा क्या, जब नहीं हुआ, ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड. वो अपना बोर्ड भी नहीं दे पाता और उसको घर में भी लाते पड़ती है, तेरे ऊपर इतना खर्च कर दिया, ये कर दिया, तू कुछ नहीं करता. नोबडी अंडरस्टैंड्स कि क्या उसने फेस किया. और अब वो क्या एक्सट्रीम स्टेप, व्हाट इज सुइसाइड? दैट मोमेंट जब एकदम आदमी को लगता है आई एम गेटिंग हिट फ्रॉम एवरीवेयर, सक्सेस इज नॉट कमिंग, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, एंड ही टेक्स दिस डिसीजन. नोबडी इज विद हिम. सो व्हाट इज द नीड ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम इन जनवरी व्हेन सो मच स्ट्रेस? हु इज गिविंग? आप अप्रैल में करिए ना, उसका मार्च में बोर्ड खत्म होता है. एक मई में कर लीजिए, उसको टाइम तो दीजिए. एंड यू आर आस्किंग व्हाट क्वेश्चंस जो मगअप करके जाते हैं एप्लीकेटिव डे टू डे लाइफ.
और सिंपल चीजें आप पूछते ही क्या है, आपने उसकी लाइफ एक स्टीरियोटाइप रोबोट बना रखी है। आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन सिस्टम देखिए पहले आप। इन सब चीजों को जब हम मिलके, और हम स्टेक होल्डर्स हमें भी साथ लीजिए, हम एक अच्छी पॉलिसी बनाते हैं। और जब गवर्नमेंट कोचिंग के अगेंस्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट कहता हूं, क्या भीम कोचिंग नहीं चलाती? उत्तराखंड में क्या कोचिंग स्कीम नहीं चलती है? क्यों वो कोचिंग सेंटर्स को एम्प्लॉय करके एससी एसटी इन सब बच्चों को कोचिंग दिलाते हैं? क्योंकि उसकी नीड है ना कहीं। ऐसा तो है नहीं। इवन यूपीएससी के लिए आप बता दीजिए, कॉलेज की पढ़ाई अगर आपको यूपीएससी क्रैक करवा दे तो फिर क्यों यूपीएससी सेंटर्स चलेंगे? सी वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर्स इज एन एलिमिनेशन सिस्टम, एंड अनटिल एंड अनलेस वी क्रिएट सीट्स। यूक्रेन में कितने बच्चे वापस आए, उसके बाद भी आपने सीख नहीं ली। प्राइवेट कॉलेजेस ने लास्ट ईयर क्या क्या किया, 2-2 करोड़ में सीटें दी हैं, और एक 160 नंबर 70 नंबर लाने वाला मेडिकल कर गया, 500 वाला रह गया। तो आप बताइए, ये सब चीजें हैं। मैं नहीं कहता कोचिंग में गलत नहीं है, फिटजी ने जो किया पूरा पूरा गलत है। दे शुड बी पेनलाइज्ड लाइक एनीथिंग फॉर सच थिंग्स, बिकॉज यू कैन नॉट टेक स्टूडेंट्स फॉर ग्रांटेड। आपने फीस पहले ले ली और उसके बाद आप उनको राइड के लिए ले जाएं, दैट इज नॉट द थिंग। तो जो इसमें अच्छे प्रावधान है, टीचर बदल देना, फीस एक ही बार में ले लेना, रिफंड नहीं करना, ये सब सिस्टम में आना चाहिए ताकि इंडस्ट्री एक सही तरीके से चले। लेकिन सारा ब्लेम एक इंडस्ट्री पे दे दें, उस सोल्यूशन पे नहीं लाना चाहे तो गलत है। पेरेंट्स की काउंसलिंग जरूरी है, एप्टीट्यूड टेस्ट जरूरी है, ताकि हम रियलिस्टिक में आए और उसको करें। पेरेंट्स को तो एक होता है, अब जैसे कुछ गरीब वर्ग है, कोटा भेज देता है, तो बच्चे को बोल देता है कि अब घर मत आना अगर तेरे से ना हो। तो व्हाट इज दैट? उसका माइंड फ्रेम, कोटा में जाइए, क्या डिस्ट्रैक्शंस नहीं है? जब एक बच्चा 10th के बाद वहां पहुंचता है, फ्रीडम, यू ऑल नो व्हाट डिस्ट्रैक्शंस दे कैन हैव, एडोलेसेंस, पीयर ग्रुप, and then there are other things which I can't speak here. So suicide is then a cumulative factor, we need to understand that. और खुद अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें बोला गया कोटा और राजस्थान से ज्यादा सुसाइड बाकी जगह स्टूडेंट्स ने किया है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड कम टू द सोल्यूशन रादर देन ब्लेमिंग ईच अदर। मेरा ओपिनियन ये है, और ये बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आप सुसाइड्स कम कर लेंगे, क्योंकि सुसाइड्स एक्सपेक्टेशन और प्रेशर है, और वो जिन एग्जाम्स में है आपको उसके लिए सीट्स, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, आप बाहर की यूनिवर्सिटीज लाइए। और एक चीज और, यहाँ बात ही आ गई, अभी एक लैंग्वेज को लेके बड़ा रोर हुआ था कि सीबीएसई 3 लैंग्वेज ला रही है, तमिलनाडु हल्ला कर रहा है, ये कर रहा है, थोपा जा रहा है। मेरा मानना है आप थोपिए मत, उस लैंग्वेज के बेसिस पे जॉब्स क्रिएट करिए, बच्चा अपने आप लैंग्वेज लेने लगेगा। आज एक बच्चा संस्कृत ले लेता है, जॉब्स नहीं है तो वो करेगा क्या लेके? यू क्रिएट जॉब्स फॉर दो लैंग्वेज, स्टूडेंट विल ऑप्ट हिमसेल्फ। बट वो फ्रेंच लेना चाह रहा है, आप कह दो ये ले लो। एजुकेशन को फ्री रहने दो, ऑटोनोमस रहने दो, उसके ऊपर आप कितना प्रेशर डालते हो डिसीजन में, यूजीसी में क्या होता है, आईआईटीज में क्या होता है, आईआईएम्स में क्या होता है, ये हमें भी पता है पास में स्टोरीज। एंड वन मोर थिंग, take a survey yourself and do a data. First year IIT, how many students who come maybe from a reserved category or this, they drop out, they don't complete IIT, first year pass नहीं होते, तो उसमें भी क्या कोचिंग ब्लेम होगा? You see how the intake is, and this year CUET, SRCC has said मैथ्स कंपलसरी करो, मैथ्स हटाने के बाद जो बच्चे आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि हमारे लिए क्वालिटी गिर गई है। Law is telling DU का कि CUET हटाओ, you don't ask legal aptitude, and you, so you know there is a overhauling system. You have to understand, in my opinion, go in a cumulative thing, create, and the problem will be solved. That's my take. शेखर सर, आप ऑनलाइन कोचिंग से हैं, तो आप थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि क्या डिफरेंस रहता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस लेवल अमंग स्टूडेंट इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एनवायरनमेंट? जी, जैसे मैम, जैसे ऑनलाइन थोड़ा स्लाइटली मुझे लगता है फोकस ज़्यादा रहता है कि पर्टिकुलरली, बट ये यहाँ देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। अभी जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, हमें 8 बरस हो गए इसको ऑनलाइन चलाते हुए, और यूट्यूब पे बहुत ही फोकस था हमारा यूट्यूब से। तो जैसे लड़कियां, पर्टिकुलरली लड़कियां घर से नहीं निकल पाती, और निर्भया केस भी हुआ था, और उसके बाद वैसे पेरेंट्स रह रहते हैं, तो उसके कारण लड़कियों को बहुत फायदा होता है कि लड़कियां जो घर बैठे बहुत सारी एजुकेशन एक्सेस कर पाती हैं, और प्लस ब्रिक एंड मोर्टार का पे नहीं करना होता, तो ब्रिक एंड मोर्टार की कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, number of students in a class can be increased, और systems can be created in such a way जो कि थोड़ा थोड़ा favorable होते हैं in the favor of students। but yes, लेकिन बहुत से बच्चे चाहते हैं घर से निकलना, किसी से पर्सनली मिलना, तो वो स्ट्रेस मैनेज भी करता है, लेकिन स्ट्रेस इंक्रीज भी करता है। और सिंस मैम जैसे, लेकिन स्ट्रेस पे मेरा अगेन एक सिंपल सा पॉइंट है मैम, स्ट्रेस ना, जो क्लासेस तो उसको एक पूरा करने का जरिया है,
मैम जो स्ट्रेस है आइडियली दैट इज जनरेटेड थ्रू सोसाइटी। जो अभी इतना इतना मटेरियलिज्म है, इतनी इतनी गाड़ियों के हम वीडियोस देख रहे हैं, और लेट्स से पीपल पीपल फ्लाइंग अब्रॉड, और कितनी सारी चीजें हम बहुत रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं। सोशल मीडिया तो उसको चलो और एनहांस कर देगा। और जो सबसे ज्यादा, अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं, दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस टू। अगर मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ पर्टिकुलरली ऑन इंस्टाग्राम विच केटर्स टू 10वीं 12वीं के बच्चे, इट लाइक सडनली एक्सप्लोड्स, इट गेट्स मिलियंस ऑफ व्यूज। अगर मैं थोड़ा सा लेट्स से ग्रेजुएट्स या उनके बड़ों के लिए अपलोड कर रहा हूँ तो वो स्लो चलता है। तो क्योंकि मैम जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर है मैम अभी यंग कंज्यूमर। तो यहाँ पे एक मेरा कंसर्न, मेरे बस पॉइंट मेरा ये है कि मटेरियलिज्म और ये सब कुछ कंजम्पशन, तो ये तो दिमाग में घुस रहा है, और उसका उसका तरीका है नहीं है मेरे पास, एक्सेप्ट मुझे लगता है पॉसिबल, पेरेंट्स को भी लगता है पॉसिबल वे आउट इज एजुकेशन। और शायद 4 पैसे कमाएगा और अच्छी जगह पे जाएगा, पढ़ेगा आईआईटी वगैरह से। तो इसीलिए वो वाला एक लगता है। लेकिन एक जैसे मैम एक वैसे बिफोर लाइक वी कंक्लूड, एक पर्टिकुलर एक देयर हैज बीन अ थियरी हमारे भारत में मैम, बहुत ही वो परेशान रहते हैं कि ना कि पॉपुलेशन से, कि आबादी से गरीबी होती है, गरीबी से आबादी, इसी में गोल 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 घूमते रहते हैं। पॉपुलेशन लीड्स टू पॉवर्टी, पॉवर्टी लीड्स टू पॉपुलेशन। दे हैव बीन कंट्रीज जो अभी मतलब इट्स अ थियरी विच इज फॉलोड मोस्टली बाय डेवलप्ड कंट्रीज। तो जैसे दुनिया में अमीर बहुत ही बड़ी आबादी वाली, जैसे यूएसए इट्स द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, 34-35 करोड़ आबादी है। एंड इट इज हाईली डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड इफ नॉट हाईली डेवलप्ड। एंड देयर आर कंट्रीज जैसे हाइती एंड ऑल, बहुत छोटी छोटी आबादी हैं और एकदम बर्बाद है। तो पॉपुलेशन से ना कोरिलेट नहीं कर पाते, ये कॉजेशन नहीं है, कोरिलेशन। तो इसीलिए ना वो कहते हैं कि ना मे बी देयर इज अ थर्ड फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस एज केओटिक, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो पानी गंदा आ रहा है, हवा गंदी है, दैट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस में मैम बहुत कम फोकस है, सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पर फोकस है। तो गवर्नेंस में आपने लाइब्रेरीज प्रोवाइड करी है स्कूल लेवल पर, गवर्नेंस में आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया है वेयर लेट्स से नॉलेज इज वैल्यूड एंड नॉट से ओनली रट्टा लगाना। और अभी यूपीएससी पर्टिकुलर में इतना, आपको इतना अनसर्टन एग्जाम है, इतना अनसर्टन एग्जाम है, आप जितनी मर्जी बच्चों को अश्योरेंस दे दो कि पेपर में आएगा, हमें खुद नहीं पता कि पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, कि कोई सिलेबस मार्क नहीं है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। देयर वाज अ क्वेश्चन कि टंबल ड्राई वॉशिंग मशीन और स्पिन ड्राई वॉशिंग मशीन में क्या फर्क है। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि मैं क्लास में पढ़ा दूं इसको, मैं टंबल ड्राई स्पिन ड्राई। तो इसलिए बस सिंपल सी बात है कि अनसर्टेनिटी के माहौल में और अनसर्टेनिटी ऐड होती है। वो उनको लगता है कि अनसर्टेनिटी ऐड करने से शायद कोचिंग सेंटर वाले प्रोडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो कोचिंग सेंटर वाइप आउट हो जाएंगे, और इनकरेज हो जाते हैं वो, और इनकरेज। बच्चे को लग रहा है मैं तो काबिल ही नहीं हूँ किसी, टीचर को शायद मुझसे तो ज्यादा ही पता होगा, और कोचिंग सेंटर दे स्प्रिंग अप। तो सर्टेनिटी प्रोवाइड करना, जीआरई से कितना कुछ सीखा जा सकता है। जीआरई का जो एग्जाम कंडक्ट होता है, इट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। तो सीबीएसई ने कदम उठाया है साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करने का। तो थोड़ा सा प्रेशर ऑफ करने के तरीके बहुत ही क्लोजर होम है, लेकिन लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो गवर्नेंस पे कितना फोकस है। रूलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है हमारा, और तो वो थोड़ा स्लाइटली फोकस थोड़ा और पीपल सेंट्रिक करना पड़ेगा, थोड़ा और समझना पड़ेगा। Focus needs to be shifted, you mean, right? Keshav sir, your concluding remarks, I want to know if this bill needs more consultation and more suggestions need to be taken from stakeholders. Yes, definitely this bill can be improved a lot if we really are aiming at regulating and getting an outcome. For the knee-jerk reaction, this bill is good to go. ठीक है, एक एक्ट आ गया, करप्शन बढ़ जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फायर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पैसे से सब चलेगा, इधर उधर होगा, और जो छोटे हैं वो they will get harassed. And one more thing which I would like to add here, why suicide cases increased in past 3 years or 4 years. One point which many of us missed and just came to my mind, they are COVID children. 2 years education was just nothing for them. उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, पास कैसे हुए सबको पता है गूगल से. So these kids took the exam real test offline from 2022 onwards, and they studied online nothing. So when the real exam came, they couldn't face those pressures. So this 4 years and the kids have been this. So in my opinion, the suicides definitely had a thing to do because they could not cope up those pressures, and maybe success stories were different. Now board exams even have changed their pattern from this year. All of a sudden they were giving easy marks this year, physics paper, class 10th maths paper, all of them. पर ऐसा कुछ आप पढ़ाते नहीं तो बच्चे कोचिंग तो जाएंगे. इसमें आप रियलिस्टिक चीज ऐड करिए. 3-4 चीजें जो मैं चाहूंगा. 1, मेक इट इन ए स्लैब वे. जैसे इनकम टैक्स होता है, आप एक स्लैब फिक्स करिए और इम्प्लीमेंटेबल. आज ये 50 बच्चे कह रहे हैं, मैं कहता हूं मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं,
इसमें ऑनलाइन का जिक्र तक नहीं है। मैं कहता हूँ मैं हाइब्रिड मोड पढ़ाता हूँ, 50 ऑनलाइन है, 25 मेरे पढ़ने आते हैं। अब आप मेरे को कैसे सेटिस्फाई पकड़ोगे कि फीस आपकी कितनी आई? मैं कहूंगा ये ऑनलाइन पढ़ रहा है। तो अगेन ग्रे एरियाज आते हैं। सो कीप इट इज सिंपल एंड कीप इट फर्स्ट ट्राई टू गेट द बिगर मोस्ट बिगर वन जहां प्रॉब्लम शुरू होती है। फर्स्ट कैच them so that you go step by step. Everything if you try to do in one step, आपका ये बिल से कुछ आउटपुट नहीं आने वाला। So then you see other places, कहाँ कहाँ कोचिंग होती है, why there is a need for coaching, where is there is a gap, try to fill up those gaps. Then कितनी बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी 12 लोगों की, कर क्या रहे हैं? एक एडवर्टीजमेंट की अलग कमेटी है। कितनी कमेटियां फेयर रहती हैं आपको पता ही है भारत में, एआईसीटी जैसी तो फेयर है नहीं। अब बात देखिए, कमेटी बनाना ये सब नहीं, तो मेक समथिंग रिलेटिव, हैव कोचिंग पर्संस इन दैट मे बी इफ रिक्वायर्ड, सो दैट दे नो द इन एंड आउट कि कौन सा कोचिंग सेंटर क्या गेम खेल रहा है। अगर वो इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है, तो अगर फॉर एग्जांपल आई एम देयर, आई विल बी द फर्स्ट वन टू close that center, because you should not allow malpractices or malais or wrong things in the industry. That is where the trust goes away. Parent gives your child or his child as a trust to us, और वो एक लोन पे देता है हमें, ताकि वो हम पे विश्वास रखता है। So that is there. So those things. Now success story, as sir said, it can be a genuine success story. जैसे मैं कहता हूँ, why don't I share? अब मैं बच्चे से परमिशन लूँ, ये करूँ। Today a child gets money and he signs at 3 places और वो आ जाता है। तो आपको ये चीजों को भी देखना है कि बच्चे ऐसे नहीं करें। फिर रियलिस्टिकली जो कोटा जा रहे हैं वो डमी स्कूल में ना पढ़े। कोटा जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डमी स्कूल में पढ़ना बुरी बात है। वो शाम को आके अपना पढ़े, उन्हें जहां कोचिंग लेनी है ले, ऑनलाइन ले रहे हैं। सो दोज थिंग्स। देन फी रिफंड। अब बच्चे ने कोर्स खत्म कर लिया, अब कहता है जी मेरे को समझ नहीं आ रहा, रिफंड दो। एंड इन कोचिंग इंडस्ट्री वी फिनिश बिफोर टाइम टू रिवाइज इट, and fees is taken only for a course package. तो child can be smart enough to finish in 5 months and अब वो कहेगा मैं अपने ऑनलाइन से देख लूंगा। So realistic बनाइए कि कहाँ पे डुएबल है, कहाँ पे नहीं है। 1 स्क्वायर मीटर स्पेस बोल दिया। आप बताइए, दिल्ली जैसी, मुंबई जैसी जगह में क्रंच है, 1 स्क्वायर मीटर कोचिंग को आप बोल रहे हैं, तो वो क्या रेंट देगा? बच्चे से फीस, who is going to be sandwiched? पेरेंट एंड बच्चा, फीस तो उसको देनी पड़ेगी, कोचिंग तो अपनी कॉस्ट बढ़ा देगा। Where will the parent go? Government doesn't have those options. So again, you see, be realistic in this. Involve coaching कि भैया हम आपको लैंड देते हैं, या हॉस्टल भी है, सब यूज करो, रेंट दो, और 25% बच्चों को कंसेशन दो, स्कॉलरशिप दो। कोचिंग ऐसे भी रिजल्ट के लिए देता है। इन्वॉल्व करो ना इनको। आपके गवर्नमेंट स्कूल खाली पड़े रहते हैं, स्कूल के बाद उनको स्पेस दे दो और वो वहां पे क्लासेस ले, ऑफिस अपना चला सके, तो इट विल बी ए वेलकम स्टेप। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम खत्म, मैं क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, वहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चला सकता हूं। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच रियली स्टेट एंड सेंटर कैन डू, बिकॉज कंकरेंट लिस्ट है, खाली सेंटर के बस की नहीं। तो वी हैव टू मेक सच पॉलिसीज, और जब तक हम सीट्स इंक्रीज नहीं करेंगे हाई स्टेक इंस्टीट्यूशन में, ये रश बढ़ रहा है। You can't stop such things till the pressure is there. IIT में एक और प्रेशर मैं बताता हूँ क्या है। आप खाली 2 अटेम्प्ट दे रहे हैं और जेई में 3, और 2 अटेम्प्ट भी कब से? 12th में अगर तुमने फर्स्ट नहीं दिया तो योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज गॉन। व्हाई यू एनकरेज कि पहले 12th दे दो भैया, उसके बाद 4 साल में तुम 2 अटेम्प्ट कभी भी दे दो। व्हाट इज दिस क्रेजी प्रेशर कि 12th में पहला नहीं दिया तो बच्चा क्या करेगा? मेरा तो एक अटेम्प्ट गया। आईआईटी कानपुर ने अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकाला कि 3 अटेम्प्ट होंगे, 15 दिन बाद हटा दिया। Where are we heading? You are yourself not making policies which are user friendly, and then blaming the other side of the coin because it is a softer target. So my opinion, come together, solve the problem. Credit हमें कुछ नहीं लेना, but कहीं इसमें अगर हम सोल्यूशन ला पाए तो विल बी द हैप्पीएस्ट वन। एंड देन सिलेक्शंस हैपन। हर बच्चा अलग है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग है। दिस इज एन आर्ट, so you cannot say which is good, which is bad. So if you really want, take everyone along and we can definitely make a good policy. Yeah, definitely. And there are ample of opportunities, and only JEE and NEET is not the end of the life. Thank you so much for joining us, sir. बहुत अच्छे insights आपने दिए. Thanks a lot.